jungle is, if you know about jungle, if you learn about jungle, then you will know that jungle is your best friend. It's a friend. It can provide you with food, water, shelter, everything, even clothes if required. So it gives you everything. Only thing is you should know about the jungle. I'm very fond of snakes actually. Oh, I, I like snakes. I love snakes. In fact, मैं नागालैंड में मैंने पाल रखे थे अलग अलग छोटे छोटे सांप, जार्स में डाल के खिलाता रहता था उनको, इंक्लूडिंग स्मॉल कोबरा, एक छोटा सा oh. हाँ, वो मैंने पाल रखे थे. Do you see that? Good afternoon, ladies and gentlemen, viewers. Again, I am with another warrior today, and this आज के जो warrior हैं बड़े special हैं. In fact, इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया. पहले आर्मी में ज्वाइन करने के बाद में कुमायूं रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया एज ए डायरेक्ट एंट्री, एंड देयर आफ्टर ही ऑप्टेड फॉर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. एंड आपको पता हुआ कि 2002 में जो एक ऑपरेशन हुआ था अक्षरधाम टेम्पल का, उस ऑपरेशन में ये लीडर थे जिसमें इन्होंने लीड किया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई. नॉट ओनली दैट, जो हमारा इतना पवित्र मंदिर है उसके परिसर को भी इन्होंने कोई खरोंच नहीं आने दी. तो ये वो हमारे वॉरियर हैं, और इनसे मिलके इनफैक्ट हम बहुत सारी बातें जानेंगे और आपको भी मजा आएगा कि किस तरीके से एक वॉरियर में जो करेज होता है और उस करेज की वजह से आज वो मंदिर और उतने लोगों की जिंदगी कैसे बची. So before I get into too many details, let's go back to the Colonel Tushar Joshi, who is Sena Medal. Tushar, welcome to the show, which I call it a win life like a warrior. Good morning, sir. Firstly, let me thank you for inviting me on your podcast. And secondly, Jai Hind to all your audience and viewers. Good. In fact, my audience and me are very eagerly waiting for this conversation, because there is something very special which you have achieved, and we look forward to that. So to start with, Tushar, firstly, we would like to know that was army was a natural choice for you, or it was out of circumstance or the family background? If you can give a little background to that situation. Let me tell you, I am the first person in my family to join army. Okay. So from home side, there was no, we didn't have any history of someone being in army. However, I had some friends, my classmates, who together dreamt of joining forces. We were three fast friends. Oh. One now retired group captain Sanjay Petkar, Colonel Ankur, and self. We were fastest friends, and we had dreams of joining army. In fact, out of three of us, Sanjay Petkar, he got through NDA, and self and my second friend Ankur, we were left behind. Okay. And हमने ऐसा सोचा था कि हम तीनों तीन सर्विसेज में जाएंगे. अच्छा, okay. Sanjay was to go in Air Force, I was to go in Army, and Ankur was to go in Navy. Now, second to go was Ankur. He completed his graduation and joined through CDS. However, he couldn't get through Navy because of some specs or something. I don't know, there might be some reasons. He joined Army. And compared to them, I joined actually late. What had happened is Sanjay left NDA immediately in first attempt. He went off. He joined NDA. Then Ankur, after graduation, also in first attempt he went. So both of them were just still Sanjay was 1 year, 1.5 years senior to him. So late हो ही गया है अभी CDS में. जब मैं गया, I had joined very late.
In fact, I cleared my SSB in third attempt. Oh, And it used to happen that I used to clear CDS exam, go for SSB, flunk and come back. फिर 6 महीने में फिर से एग्जाम लिखता था, 6 महीने बाद फिर एसएसबी जाता था, flunked and came back. oh, Third time again I wrote SSB, CDS, went for SSB. I was clearing UPSC. एक बार ऐसा हो गया था, बाएं हाथ का खेल हो गया था CDS. I could understand now the tricks of passing the UPSC. So I used to clear CDS and go. Third time when I went to SSB, that time president of the board, I don't know the name now, but he asked me, so Tushar, you have already attempted twice. What if you flunk this time also? Well, I've got one more chance. I'm not going to leave. never give up attitude. Never give up attitude. मैं बोला मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा निचोड़ लूंगा जितने मेरे chances है. I will just take on. And then he asked me, like typical question, why do you want to join army? Instead of giving that typical, मैं हर जगह जो पहले में जो दिया था, I want to serve nation, I want to wear uniform, मैंने ऐसा कोई आंसर नहीं दिया. What I told, कि I am trying for civil services also. I have tried for railway recruitment board also, officers, then probationary officers for bank. I am trying everywhere. And I have, in written exam, I have got selected, but in interviews and because of that caste and that reservations and all, I couldn't get through. This is similarly, I have applied for this also. And again, I'm trying it. That is the thing. And as far as if you want to point me towards the nation building, well, nation building तो हर कोई करता है. Yes. Engineer भी nation building करता है. Doctors keeping nation's health, वो भी nation building करता है. A labor, he also do nation building. Absolutely. Every teachers who are the foundation makers, or they are contributing towards nation building. तो सिर्फ आर्मी ज्वाइन करने से ही नेशन बिल्डिंग होगा ऐसा नहीं है. मैंने रोजी रोटी कमा ली है, सिंपल एंड स्ट्रेट. मैंने रोजी रोटी कमा ली है, मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, ये भी मैंने ट्राई किया. बस आई वाज वेरी कैंडिड इन द telling him that. I think Tushar, this your truthfulness has helped you to crack that SSB in the third attempt. I don't know, but last two SSB, why I flunked, I don't know, and why I passed in third SSB, that also I don't know. You will watch with me कि आपको भी पता नहीं होगा आप SSB क्यों क्लियर हुए, कैसे हुए. It is same. So it is simple. So we guys, we don't know हम SSB क्यों select होते और क्यों flunk होते. Just that ना. Yeah, but yes, I got through and fantastic. So Tushar, in fact, मैं जरूर एक यहाँ पूछना चाहूंगा कि योर फर्स्ट चॉइस बीइंग आर्मी, जैसे तुम बोला कि तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया था, तो वो कौन सी चीज थी जो अंदर सबकॉन्शियसली थी जो आपको आर्मी ने अट्रैक्ट की या डिफेंस ने अट्रैक्ट किया? कैन यू रिकॉल दैट? बिकॉज आई कैन रिकॉल माइन. आर्मी, यू मीन टू से आर्मी और I said that donning the uniform, that you said ना कि हम तीन दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाएंगे. और मैंने आर्मी चूज किया था क्योंकि मुझे पता था मैं आर्मी के लिए फिट हूँ. सिंपल, और कुछ भी नहीं है. मैंने बोला मैं आर्मी में जाऊंगा भाई, मैं उसके लिए तैयार करता हूँ अपने आप को. बट कोई बेसिक रीजन था दिमाग में जो होता है यंग डेज में? क्या लाइक क्या था, we were into scouts and guides and हम देखते थे हमारे घर के वहां से we used to go. आपकी थोड़ा आवाज कम हो रही है थोड़ा.
I'm saying that हम लोग in Hyderabad, we were in Hyderabad that time. We were studying in Kendriya Vidyalaya Uppal. So हम जब भी cantonment cross करते थे, we used to see our soldiers standing outside. We used to see those roll calls and that officer standing और PT parade हो रही है और ये सब हम देखते रहते थे. So that was one. And एक और चीज थी, we three of us had gone to take interview of mother of group captain Rakesh Sharma, who was the Oh, first. So she was our teacher in Kendriya, oh, one of our okay. teachers. तो हम तीनों छोटे ही थे, तब संजय ने भी ज्वाइन नहीं किया था, मतलब नाइन्थ, आई थिंक नाइन्थ. तो हम तीनों गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए. Oh, देयर आर सो मेनी. ऐसी हुआ तो वहां से भी हम मोटिवेट हुए, यार जाना तो यही है, ये इसी में ही है दम, मतलब इस तरह का oh, कुछ था. सो so these were the reasons which yes, actually yes. added on to our I, motivation to join I understand in that is these are the small things which motivate or inspire you to join. yeah, In fact, that time we don't realize, but when you look back, हाँ यार उसके वजह से अपना बना है कुछ. That is what it is. in fact, Rakesh Sharma was inspiration to me also. In fact, मैं तो 83 में I was working in HAL. Okay. And I believe 85 में he came as a test pilot in Hindustan Aeronautics Limited, नासिक में. So अब आके मैंने, you won't believe it, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, इसी पॉडकास्ट में है. Okay. Wow. Yeah, I have interviewed him, Rakesh Oh, Sharma. wow. Great. After so many years, I gone back to my inspiration and I invited him, and you can find that recording in this. Yeah, I will just show you. Now, one thing I want to say, I did my diploma in electronics and communication also. Okay. What had happened is, after my complete educational career was a bit haywire. Okay. After 12th, I did 12th from science only. I couldn't get through engineering, or I didn't get that appropriate rank or whatever. But then I wrote a polytechnic entrance. I got through that. I got through that polytechnic entrance and joined polytechnic. I completed that in diploma in electronics and communication, and sideways I did my graduation also. Okay. Which subsequently, or based on that, I joined CDS or joined army. Now, after graduation, after my polytechnic, after my diploma, there was time कुछ तो खाली तो बैठना नहीं है. I did apprenticeship with HAL only. Oh. Hindustan Aeronautics Limited in Hyderabad. It's a electronic division. So I did it there. तो वहां पर मैंने वो किया था एंटीना टेस्टिंग, उसके अंदर मैंने I did that. So I just, when you said HAL, so I could relate. I know Hyderabad HAL very much. वहाँ UHF VHF रेडियो सेट बनते हैं, ब्लैक वाले बनते थे, बड़े बड़े डब्बे, और उसके यस, बिकॉज आई वाज इन द नासिक में था मैं. अच्छा. नासिक में आई वाज इन फंक्शनल टेस्ट लेबोरेटरी. मेरा काम ही ये था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ओजर. आई एम आल्सो, हाँ, ओजर, एंड आई एम आल्सो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड ओनली. अच्छा. So that is why I can recall that. Yeah, perfect. So Tushar, yes, you finished your this selection and all, then joined academy. So how was academy experience as such? Because you by look, otherwise also you were a tough guy. Have any incident or you would like to narrate of that time of academy? Yeah, incident. Yeah, I had just come out of my college, and college के बंदे कैसे होते हैं पता है. I had joined IMA, और पहले 2-3 दिन हो गए थे, और वो अपॉइंटमेंट्स पहले आ जाते हैं ना. I know. तो अपॉइंटमेंट्स ने आया, हमको बताया कि ये चीजें खरीद लो, तुमको जरूरत पड़ेगी एंड ऑल दैट. तो उसमें एक वो ड्रेसिंग गाउन भी था, जिसपे फर्स्ट नंबर था टू वियर ड्रेसिंग गाउन एंड कम आउट. आई डिडंट बाय दैट. साले जिंदगी में कभी पहना नहीं है, मेरे किस लिए ड्रेसिंग गाउन चाहिए. एनीवे,
इट सो हैपेंड कि मैं अपने केबिन से बाहर निकला और जो थर्ड टर्म में जो नया सीएसएम आया था, मतलब अपॉइंटमेंट आ जाते हैं ना, पहले सीएसएम ने आया, तो ही टोल्ड मी कम हियर कम हियर कम हियर। आई वाज इन जोजिला कंपनी। अच्छा, नाउ ही कॉल्ड मी एंड बोला वेयर इज योर गाउन, व्हाट गाउन, बोला you didn't your line sheet tell you to wear gown or anything? Well, he told me to buy, but I don't want. That, well, doubtful, na? But I don't want. Oh, you feel like not buying it only and not wearing it, and above that you want to say that I don't want to buy. Well, sir, I don't want. I'm okay with this. I'm okay with this. So there was some altercation between us, and it so happened he held my collar. CSM held my collar. His holding of my collar and my one dhap on his face was simultaneous. now you can imagine a first timer coming to academy just after 3 days, giving a bloody slap on CSM. Just you can imagine what would have happened in subsequent days, in coming days. तो वो हो गया। एंड एनडीए के आते हैं बच्चे ही होते हैं, हमारे सामने तो बच्चे ही होते हैं, कुछ नहीं होते, 1-2 साल तो छोटे होते हैं, 1 आध साल से छोटे ही होते हैं। और वो एनडीए से हम तो कॉलेज से ही निकले हुए थे, तो कॉलेज गाइज आर डिफरेंट, एनडीए गाइज आर डिफरेंट। तो ही हैड अ ग्रेट शॉक ऑफ लाइफ, वो समझ में नहीं आया व्हाट टू डू। ही जस्ट वेंट इनटू द रूम, मैं अपने रूम में आ गया। ये मस्त, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद देखा all lances are now rolling in the quadrangle. all lances second termers are, मैं बोला ये क्या हो रहा है? I didn't understand. मैं and doubtful इतना कि मैं अपने केबिन से बाहर आया और कमर पे हाथ रख के मैं देख रहा हूँ ये क्या, what is happening? ये चौथा दिन था, तीसरा चौथा ही दिन था। अबे what the hell I will know. हो फिर that night and 1 month तक till my और जो कोर्समेट सब इकट्ठा हुए तब तक ना, इट वाज हेल वाज ब्रोकन ऑन अस। हेल वाज ब्रोकन ऑन अस। फिर होता था पूरा दिन क्लास में आते थे, रात में डिनर होता था, डिनर के बाद पीटी रिग में, फिर क्वाड्रेंगल में, फिर साला मसूरी नाइट, कचरा, साइड रोलिंग, क्रीम रोलिंग एंड ऑल दैट बड़ी थिंग, puking, all are puking, like rolling in that only, मतलब you know how we करते 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 मेरे को फिर धीरे धीरे अगले एक पहले हफ्ते में समझ में आ गया बॉस, दिस इज नॉट दैट एंड आई हैव टू बी गॉट सॉर्टेड। आई वाज सॉर्टेड। जो ईगो जो होता है ना, इट वाज प्रॉपरली क्रश्ड। एनीवे, बट देन हमारा नोवाइसिस क्रॉस कंट्री हुआ सर। अच्छा, हमने कॉलेज में ऐसा कुछ, सिर्फ आई वाज अ स्प्रिंटर, मैं कभी दौड़ दाड़ तो लेता था, पर वैसे तो कभी ऐसा क्रॉस कंट्री हुआ तो क्रॉस नोवाइसिस में दौड़ा देते हैं, हम भी दौड़ लिए। इट सो हैपेंड आई केम इन फर्स्ट इंक्लोजर। आई केम इन फर्स्ट इंक्लोजर, आई माइट बी अ नेचुरल रनर और वॉट एवर, कभी मुझे भी पता नहीं था कि आई कैन रन। आया एंड फर्स्ट इंक्लोजर में आया, एंड दैट टू अर्ली टाइम फ्रेम वाला फर्स्ट इंक्लोजर। मैं पहुंच गया और फिर उन्होंने, फिर वो सेलेक्ट करते हैं ना बंदे, हाँ कौन कौन है फर्स्ट इंक्लोजर, मैं अकेला ही था फर्स्ट इंक्लोजर। और एक नहीं, सॉरी, एक और था, हाँ 2 लोग थे, तो हम बोथ, हमको बाहर निकाला। वो सीएसएम वॉज, जिसको मारा, धाप मारा था मैंने, सीएसएम वॉज अ गुड रनर, तो ही वॉज अ क्रॉस कंट्री वाला था। उसने देखा, ओके, आफ्टर लंच क्रॉस कंट्री अगेन, प्रैक्टिस चालू हो गई। एंड आफ्टर 3 मंथ्स के बाद फिर से क्रॉस कंट्री तो चलती रहती है बीच बीच में। जोजिला और जोसोर का हमेशा टक्कर होती रहती थी, एक ही बटालियन के थे, टक्कर होती रहती थी हमेशा, लड़ाई। एनीवे, तो वो हुआ उसमें, हाँ, सारे फर्स्ट टर्मर्स का कंपटीशन कराया उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ फर्स्ट बार।
एंड आई केम थर्ड और फोर्थ, आई केम थर्ड और फोर्थ उसमें, हाँ आई केम थर्ड और फोर्थ ऐसा पहुंच गया। एंड देन धीरे 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 हमारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो गई। एंड फोर्थ फर्स्ट मतलब उसके बाद एक पूरे कंपनी की क्रॉस कंट्री हुई, उसमें मैंने सीएसएम को भी हरा दिया, हम्म, सीएसएम को भी हरा दिया मैंने। हाँ, उसके बाद से सीएसएम दैट वाज इन थर्ड और फोर्थ मंथ है सर। हम्म, सो उसके बाद सीएसएम ने मेरे को पैल बना दिया। हाँ. So that means moment you excel in the sport. हाँ मेरे को पैल बना दिया। हम्म, बट उसको खुंदक थी या नहीं थी पता नहीं। बट उसके बाद मेरे पहला फर्स्ट टर्म वेंट ऑफ वेल। तो दिस इज हाउ माय एंट्री वाज। I know, I know. Then the one who is good runner, हाँ he get termed as a ghoda also. हाँ घोड़ा। एंड आई यूज्ड टू स्मोक आल्सो दैट टाइम। Okay. मैं सिगरेट पीते पीते दौड़ता था। Hmm. तो हमारा हमारा जो हमारी जो बटालियन थी नीचे थी, इफ यू रिमेम्बर एसीसी स्लोप में नीचे, नीचे I know. गड्ढे गड्ढे में थी। और Yeah. वहां से वो स्लोप चढ़ने के टाइम पे वो वहां पे एक किसी को बोलता था एक सिगरेट जला के रखना था यार मेरे को देख के। और आई यूज्ड टू जस्ट पंप सिगरेट एंड क्लाइम ऑन दैट। वो बेसिकली साइकोलॉजिकल था, I know, वट I एवर know. इट इज। बट bottom line was I could fare very well in cross Yeah. country. Good, good, good. But I was bad in drill। ड्रिल मतलब मेरे ड्रिल बहुत, मैं लिबर्टी ना मेरे टर्म के लास्ट में गया, वो भी ना मर्सी टाइप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता था, एज टू बी फेलिंग डीएसटी। Yeah. बट चलो हो गया ऐसा। दिस Then इज नॉट माय, that is those are the days to be remembered. Academy days yeah, are always to be remembered. yes. In fact, I joined as a technical graduate. Uh-huh. In 86, I joined academy Okay. and then passed down in 87. So, like you said, ना कि आपको अपनी काबिलियत पता नहीं लगता जब तक आपको टेस्ट न किया जाए। तो same in the running also, I was also termed as a घोड़ा by my coachmates. Still they call me, and that is where I realized myself that I can run well, and I still run well. So sometimes what academy says, until you are subjected to something, you don't know your own capabilities. Exactly. So sir, this unit which you joined or the regiment which you joined, was your choice or how was the experience? No choice. मैं कहीं किसी को कोई choice नहीं दिया। I wanted to join army, बस I wanted to join infantry. Okay. तो मैंने जैसे होता है, मैंने कुमाऊं भरी, गढ़वाल भरी, ऑल हिल ट्राइब्स हुआ thing. तो गोरखास, Why hill type? मेरे इंस्ट्रक्टर्स डीएस वही थे, ऐसा अच्छा. वही वो लोग ही थे। तो बेसिकली यू सी दैट हैट हैकल. तो इस तरह का ना स्टाइल भी तो चाहिए ना। तो वो हैट वो यूज्ड टू इम्प्रेस मी। तो वो पहन के आते थे डीएसएस ना, तो मेरे को अच्छी लगती थी। बोला यार ये इनके किसी ये रेजिमेंट में जाना चाहिए जिसमें ना यू गेट हैट। तो एंड आई वांटेड ब्रास, ब्लैक नहीं। ओके. तो फिर वो बाद में ध्यान में आया, अरे ये गोरखास में ब्लैक होता है, राइफल्स में ब्लैक होता है। पर आई डिडंट गेट गोरखास, आई गॉट कुमाऊं। आई वाज हैप्पी। So how was the first experience there in the unit? Oh, that was another experience. I had joined my unit 21 Kumaon. My unit was that time in Gangtok. गैंगटॉक में पहुंचा, गैंगटॉक में यूनिट थी। एंड मेरा आई गॉट पास्ड आउट ऑन 11th of December 93 एंड 21 days की छुट्टी होती है। माय न्यू ईयर वाज इन द ट्रेन, क्योंकि 21 days हो रहे थे, वो 21st डे में तो ट्रेन में ही रहूंगा मैं। तो और न्यू ईयर, सो मैं सिलीगुड़ी पहुंचा, गैंगटॉक जाना था, सिलीगुड़ी पहुंचा। वहां पर जिप्सी आई थी,
one officer came, one left second lieutenant, तब तो second lieutenant होते थे, तो second lieutenant came and बोला कि कम कर लेके ही रेस्टोरेंट में एक और बंदा आया बड़ी, उसने मेरा सामान वामान उठाया, और वो तब जो वो होती थी क्या, जोंगा, जोंगा Yes. होती थी, हाँ जोंगा होती थी, जोंगा में डाला सिलगड़ी में एंड टुक ऑफ। चले हम लोग गैंगटॉक में पहुंचे। आई वेंट टू द मेस, मेरा सामान किसी कमरे में डाल दिया, बैचलर का कमरे, मेरे को पता नहीं था, मेरे को मेस में लेके गए। मेस में ऑफिसर्स वेर देर, मतलब जो एक दो ऑफिसर्स जो होंगे वहां पर मेस में थे, तब तब तक लंच का टाइम हो गया था, 2-3 बज रहे थे, तो लंच हो गया था, तो 3 बजे तक तो लंच होता था तब क्योंकि सब इधर उधर से आते थे, तो आई कुड मीट कपल ऑफ ऑफिसर्स देयर। तो वहां पर पहुंचा। ओके, फिर देन दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस के वो किया, और वो दोपहर में मेरी दारू शुरू हो गई। वो आते ही पहले ना, व्हाट डू यू ड्रिंक, सर नथिंग सर, आई डोंट ड्रिंक यू। बोला अच्छा आई डोंट ड्रिंक, वो शुरू हो गया, नहीं अच्छा यू डोंट ड्रिंक, अच्छा स्टिल व्हाट डू यू वांट, यू कांट गो विदाउट दैट, ओके देन आई सेड आई विल हैव व्हिस्की विद सोडा। बोला अच्छा यू डोंट ड्रिंक एंड यू वांट यू कैन टेल दैट कि ना व्हिस्की विद सोडा एंड हैव लिटिल वाटर। तो मैंने बोला पी लेता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने पिलाना शुरू किया, फिर उसी में फिर उसके बाद ओल्ड 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 मॉन्क नहीं थी तब, हरक्यूलिस होती थी, फिर वो रम शुरू कर दी, और उन्होंने शाम तक मेरे को पिलाते रहे, शाम तक पिलाते रहे, और बोला ओके गेट मी योर आई कार्ड, वी वांट टू चेक वेदर यू आर तुषार जोशी और नॉट। वो ड्रामा शुरू हो गया। बोला अभी, नाउ आई वाज सो सॉजल्ड, आई डिड नो वेयर इज माय स्टफ। फिर मैंने पूछा कहाँ है मेरा सामान, तो गया, अच्छा मेरा सामान मिले ना, और जो ऑफिसर बन के आया था वो जॉनी था, और जो मेरा बडी बन के आया वो ऑफिसर था, उसने ना मेरा आई कार्ड निकाल के गायब कर लिया। अच्छा फिर देखो सामान किसी तरह, मैं सामान ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा आई कार्ड मिले ना। हाँ उन्होंने मेरा आई कार्ड मेरे बॉडी से निकलवा लिया था, बोला क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था, उन्होंने बोला कि ओके गैंगटॉक में एंट्री करने के पहले वी हैव टू शो द आई कार्ड एंड ऑल दैट। मैं बोला होगा, तो मैंने आई कार्ड उसको दिया था, दिखाया, वो उन्होंने गायब कर लिया। बड़ी 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 बट एक्चुअल में ऑफिसर था वो, उसने मेरा आई कार्ड गायब कर लिया। 2 दिन तक दे वर एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग मी कि तेरा अभी क्या कोर्ट मार्शल होगा, तूने आई कार्ड घुमा दिया, ये हो गया वो हो गया, एंड नॉट 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 नॉट। पर फिर किसी तरह दिया उन्होंने मेरे को। वन इफ यू आर अवेयर दैट ऑफ दैट एरिया, वी वेर इन स्वास्तिक, गैंगटॉक में स्वास्तिक करके जगह है, यूनिट वाज देयर। वहां से ऊपर एक हनुमान टोक करके एक प्लेस है, ऐसी रात में तेरे को पिलाया उन्होंने, नहीं हाँ संडे का दिन था, पिलाया उन्होंने, दोपहर में शुरू हो गई, और शाम को 4 बजे एक कोई क्रॉस कंट्री वाला बंदा था, उसको बुलाया, ओके साहब को हनुमान के दर्शन कराओ, हनुमान टोक। ओ इट वाज सच टॉप, कहाँ था पता नहीं, ऊपर पहाड़ में, एंड आई वाज सॉजल्ड। आई गया, मैं वहां तक ऊपर तक गया हनुमान जी के दर्शन किए, और वापस भी आया कि लड़ते लगड़ते गिरते पड़ते किसी तरह लड़खड़ाते पहुंच गया मैं वापस। और फिर शाम को फिर मेरे को क्या, फिर देन दे पुट मी इनटू द लाइंस, ऑफिसर मेस में तो भेजते नहीं है, लाइंस में भेजा। लाइंस में फिर जॉनिस के साथ उधर मजे आ रहे थे, 12:30 बजे 12:30 बजे खाना, सो जाओ, और 2-2:30 बजे 2:30-3 बजे सिटी लगती थी शाम की, सीएसएम बजाता था। तो आई वॉज तब मतलब सिपाही, हमारे सिपाही मतलब वो नहीं होता, पहले सिपाही एक दिन सिपाही पे, अगले दिन सीएचएम बना देते, फिर सीनियर जेसीओ, मतलब ऐसे अपॉइंटमेंट सीखने के लिए। तो उस दिन तो वो था, एंड बट इतना ही था कि सवेरे सवेरे मेरे को चाय लाके दे देते थे, बोला ये कौन हो, ये अफसर, ये कल हमारी सर पे बैठेगा तो खैर उतना हो जाता था। आई डिडंट हैव टू सर्व चाय लाइक मॉर्निंग में यंगेस्ट सिपाही गोज एंड
gives tea, वो चक्कर नहीं था मेरे लिए at least. Anyway, so this is how we learnt in my unit. I learnt every duty of my our appointment of company appointments. Then I was dined in officer mess after 15 days, 2 weeks of my training and living in the line. Uh, In then fact, Tushar, importance of the I card is inculcated in you the very first day. exactly. And that is the one document, it's the last day of your service in the army, you don't forget that importance. Absolutely. In fact, every one of us goes through the same story in every unit. रात में सोने के पहले एक बार सोचते हैं आई कार्ड कहाँ रखा है क्यों सर Yes, I card and your weapon, there are two very important things in the life. आई कार्ड एंड वेपन ये कहा वेपन तो जनरली बड़ा होता है तो अपने पास ही रहता है फील्ड में तो रहता ही रहता है पीस में तो कोत में होता है चलो ठीक है बट आई कार्ड तो हमें अब अच्छा कहाँ रखा है मैंने अच्छा वहां है ओके एवरी नाइट बिफोर स्लीप ये याद पक्का करते हैं आई कार्ड कहाँ रखा है I think it goes from your body only when you leave the army. That's all. Exactly. 31st. And I think these are some of the very good habits inculcated in us by the armed forces. Yes. That what is important, you must know that. What is important. All that are done right from the IMA days. In fact, I want to tell our viewers also, like army when we join, you might see people we say ragging in college or whatever. We don't say ragging. Yeah. It's a mental toughening. It's a physical toughening. Yes. It is inculcating the camaraderie. It is inculcating esprit de corps. It is inculcating that साला एक ने गलती की और एक महीना मेरे कोर्समेट खा रहे थे मेरी सजा तो दैट वो होता और फिर कोर्समेट भी मारते जूते मतलब वो तेरी वजह से ऐसा हो रहा है टाइप बट दैट camaraderie that stays till now साला हम मरने तक till we are in हमारे उस पे चीता पे नहीं चढ़ते तब तक साले अपने दोस्त होते हो we know each and everyone and that is the one I think relationship which is lifelong sir because we have gone to thick and thin during IMA also or during otherwise during service also so we have gone to thick and thin so that relationship और अभी तो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी आ गया है तो अपने कोर्समेट के ग्रुप शुरू हो जाते तू कैसा था तू ऐसा था तू अबे तू साले सुधर गया तू ये अबे तू ऐसा तो नहीं था इट्स सो एंड यू एक्चुअली नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं Tushar, then how did you transit or this transition from your Kumaon Regiment to the NSG happened? What was that turning point? Now, I just went through the proper अपने जो army days, my courses, mandatory courses. I did those mandatory courses. Commandos also, I got instructor grading in that. Physically, I was damn fit. उसमें कोई शौक नहीं था. Physically fit, I was fit. और ठीक ठाक था and good and we had gone to then after Gangtok we had gone to Palampur and Palampur I got married and brought my newlywed wife to Palampur and Palampur में रहे 8-10 महीने क्योंकि 8-10 महीने ही बचे थे मेरी शादी के बाद Palampur में then we moved to Nagaland. So, means Tamil Nadu to Himachal Pradesh. Not Tamil Nadu. Gangtok. We were from Gangtok. We came to what I'm saying, that you being a Hyderabadi and married in Palampur means Himachal Pradesh. No. Married in Palampur, matlab when I was posted in Palampur. Posted in Palampur. I married from Hyderabad only. Okay. I am married from our known family only. Okay. We were childhood friends and later got married. And I'm telling Palampur, when we were posted in Palampur, I got married. Okay. And we had time together for 8, 9, 10 months. And our battalion moved to Nagaland. So I had moved in advanced party. वहाँ चला गया था. And Nagaland, तो फिर NSC and IM, NSC and K. So there was a proper चलता था मतलब मारा मारी वहाँ पे काफी उधर भी
कई चीजें होती तो रही। सर आपने अभी ये नागालैंड की जो बात की है ना, वहां का थोड़ा सा बताओगे कि सी यू हैव डन ए कमांडो कोर्स एंड ऑल, एंड वहां तो सारा जंगल है, सारी लड़ाई जंगल की है. सो लिविंग ऑफ द लैंड देयर, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस देयर? व्यूअर्स में लाइक टू लिसन दैट. Otherwise, before my joining army also, my dad was in the Survey of India. Okay. Survey of India, topographical Survey of India. So he used to go for camps and this thing. तो हम भी गर्मी की छुट्टियों में, I will just go back a bit. गर्मी की छुट्टियों में जाते थे डैड के पास. तो he used to take us to the jungle विंगल. तो he used to do that सर्वे रिवे करते रहते थे. हम भी जंगल में घूमने जाते थे डैड के साथ. तो मैं डैड यूज टू टेल मी अबाउट सम जंगल के बारे में बताता है. आई यूज्ड टू फील इंटरेस्टिंग. मतलब दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स ना आर्मी ज्वाइन करने का. दिस आउट. तो डैड के साथ जंगल में जाते थे. डैड आल्सो यूज्ड टू टेल समथिंग. यहाँ ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये फ्रूट्स खाते हैं, ये फ्रूट्स नहीं खाते हैं. एंड दिस थिंग कमांडोज में भी सिखाया. बट देन आई हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर जंगल. देखो जंगल बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. एंड नागालैंड में मेरे को वैसा जंगल तो मिले ही ना कहीं, वैसा जबरदस्त जंगल. आई जस्ट वांट टू से लाइक जंगल में लिविंग ऑफ द लैंड. इफ यू से लाइक if you jungle, I will just talk about jungle is, if you know about jungle, if you learn about jungle, then you will know that jungle is your best friend. It's a friend. It can provide you with food, water, shelter, everything, even clothes if required. So it gives you everything. Only thing is you should know about the jungle, what to eat, what not to eat, where to get water from. तो हमने तो सीखा ही हुआ था. तो दैट प्रैक्टिकली आई यूज्ड टू सी इन द नागालैंड. जैसे नागालैंड में ना जंगल होता था तो बैम्बू के जंगल भी है. तो हमको सिखाया था जब बैम्बू के इसमें पानी आ जाता है बारिश का इसको, और नागालैंड में इट यूज्ड टू रेन अ लॉट. तो बैम्बू को काट के हम देखते थे, ओह ये पानी, एंड वी यूज्ड टू ड्रिंक इट. सो वाटर यूज्ड टू बी सो स्वीट, सो नाइस. सो आई जस्ट वांट टू से लाइक पानी आपको यहाँ से मिलता है. एंड जो वहां पर देर आर रिवलेट्स, स्मॉल स्मॉल रिवलेट्स होते हैं, उसका पानी वी हैव गॉट दोज क्या वाटर स्टरलाइजेशन किट भी होता था अपने पास. रिमेम्बर क्लोरीन और वाटर, वो टैबलेट्स वाटर स्टरलाइजेशन किट होता था, एक छोटी सी डिबिया होती थी उसके अंदर. तो वो डाल बोल के अब मतलब पानी का हो जाता था. खाने के लिए ऑल विच इज रेड should not be eaten until unless you know about it. Simple. Mushrooms. अब mushrooms कौन से खाने हैं कौन से नहीं खाने हैं, that also one should know. Mushrooms तो बहुत उगते थे वहां पर. तो I could find out. जैसे लाल लाल काला काला नीचे होता था तो we don't eat it. White होता था वो खाते थे. तो लाल कुछ भी फ्रूट है लाल, लाल इज डेंजरस. तो एनीथिंग रेड हमको सिंपल बताया था कि जो भी लाल है हाथ मत लगाना, इट इज डेंजरस अंटिल अनलेस यू नो. कहीं जंगली टमाटर उग रहा होगा तो ठीक है खा लो, डजंट मैटर, यू नो अबाउट टमाटर. और बट ऐसा बट all are not tomato. So it might be fatal or it might be poisonous. And knowing about wildlife, and दूसरा I'm very fond of snakes actually. Oh. I like snakes. I love snakes. In fact, मैं नागालैंड में मैंने पाल रखे थे अलग अलग छोटे छोटे सांप, जार्स में डाल के खिलाता रहता था उनको, इंक्लूडिंग a small cobra, एक छोटा सा. हाँ वो मैंने पाल रखे थे. Do you still have? नहीं अभी तो my wife will kick me out. Anyway, so I used to I had that those मैंने पाल रखे थे छोटे छोटे, and I was quite comfortable in catching snakes very easily. वो कमांडोज में एक बार, हाँ snake. I think snake eating is something like a fish, no? I will come to that. I will just go back. कमांडोज में क्या हुआ था, इंस्ट्रक्टर वो दिखा रहा था ये वाइज स्टिक और ये सब पकड़ना एंड थिंग फलाना ये सब दिखा रहा था. एनी वॉलंटियर में बोला ओके
मैंने हाथ उठाया, बोला कम डाउन, टेक दिस करके उन्होंने वो दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना हाथ से ना उसका डायरेक्ट वो किया और हाथ से पकड़ लिया ऐसे ही, है ना, हाथ से उसका अटेंशन इस तरफ ऐसे ऐसे हाथ किया तो सांप उस तरफ देखता है, और हाँ, फिर धीरे से इस हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने मेरे को ऐसे जूते मारे ना, उस इंस्ट्रक्टर ने, ही जस्ट हैड मी दैट डे। वो बोला कि यार, आई एम टीचिंग यू अ वे, आई एम टीचिंग यू अ मेथड, डू विद दैट। बोला ओके सर। देन आई डिड विद दैट एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डू विद दैट। बोला सर आई कैन कैच इट लाइक दिस ओनली। बोला ओके गेट आउट, गो बैक। भगा दिया, वो पिट में से बाहर भगा दिया। फिर बोला ऐसा, मतलब आई वाज सो कंफर्टेबल। उसका ईगो, उसको ईगो हर्ट हो गया। करेक्ट। ओ भाई, दैट वाज नॉट इंटेंशन, आई वाज कंफर्टेबल, कैसे पकड़ू, मैं जैसा कंफर्टेबल था वैसे पकड़ लिया। नो, अभी कमिंग बैक टू ईटिंग ऑफ स्नेक्स एंड ऑल। स्नेक कमांडो स्कूल में तो सिखाया ही था, 6 इंचेस फ्रॉम टेल, 6 इंचेस फ्रॉम हेड, कट इट, स्लिट इट, टेक आउट लाइक अ सॉक्स, सॉक्स की तरह उसके खा निकालो, एंड दैट इज दैट अंदर का दिस थिंग फिश इज जस्ट सॉफ्ट, दैट इज जस्ट कट इट फ्राई कर, और वो फिश के जैसे ही लगता है एक्चुअली। आई नो, आई नो। तो मतलब दिस इज द वे यू सरवाइव करना है, जिंदा रहना है जंगल में। कभी ऐसे हालात भी आ सकते हैं, देयर माइट बी सम ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन वेर यू गेट स्टक, खाना खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, जो रोज राशन वेशन होता है वो खत्म हो जाता था, पानी खत्म हो जाता था। तो हाउ विल यू सर्वाइव, जिंदा तो रहना है, तो यू शुड नो हाउ टू, व्हाट ऑल टू ईट, हाउ टू ईट, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। You तो mentioned about this water in the bamboo. हाँ, So that get naturally collected inside the bamboo? हाँ, इट मस्ट बी सीपिंग इन ना, बारिश Sipping. होता है सीपिंग इन, Sipping. पोर्स पे जो नॉट होता है, नॉट में ऐसा आता है, सीप करता हो वैसे ही हो, Drop by drop must be. एंड गेट्स फिल्टर्ड ना, बिकॉज ऑफ, Yeah. इट्स नॉट दैट कि एकदम भर जाता है, पर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ It, जाता है। it must be something like a nariyal में जैसे पानी। नारियल, हाँ, नारियल के जैसा हो जाए वो, धीरे धीरे धीरे, हम्म, नारियल में तो पानी अंदर से बनता है, बनता ही है। तो बाहर का आता है, वो अंदर सीप करता रहता है वो, And get filtered also. और फिल्टर्ड ऑल्सो, दैट्स व्हाई द वाटर इज प्योर। इनफैक्ट बैम्बू में तो खाना भी बना सकते हैं, हाँ, यू कैन कुक राइस, लाइक okay. बैम्बू का एक ले लो, दोनों नॉट्स के इधर, दोनों नॉट्स को इंटैक्ट रखो, बीच में स्लिट करो, पानी भरो, पानी चावल डालो, फिर से वो ढक्कन पीस लगा दो, पैकेट विथ मड, कीचड़ लगा दो, आग लगाओ और उसमें कर दो, Oh, अंदर फर्स्ट क्लास चावल बन जाता है। अंडे अंडे उबाल सकते हैं, यू कैन कुक एनीथिंग, oh. यू कैन कुक एनीथिंग। वो मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी वो थोड़ा सूख जाता है, उसके बाद आग में रखो, तो हीट से अंदर फर्स्ट क्लास खाना भी बन जाता है। Any encounter with the wild animals? वाइल्ड एनिमल्स, हाँ वैसे तो कई हुए, लाइक ये टाइगर्स वगैरह तो ऐसे तो नहीं मिले, इतने आसान नहीं होते। पैंथर्स दिखे, पैंथर्स नहीं, क्या बोलते, लेपर्ड्स, लेपर्ड्स मिल दिखे, पॉर्क्यूपाइंस दिखे। एंड एनिमल्स का ऐसा है ना, वाइल्ड एनिमल्स का ऐसा है, दे आर वेरी शाय। कोई भी जानवर, इट विल नॉट अटैक यू, एनिमल विल नॉट अटैक यू until and unless it is cornered or it feels himself unsafe, it will not attack you। तो और सबसे डेंजरस जानवर तो आदमी है, फॉर नो राइम और रीजन ही विल किल। Yes, सो हमारे से डेंजरस कोई नहीं, I know. इवन लेपर्ड, पैंथर्स और एनी कैट फैमिली के वो, एनी एनिमल, दे आर शाय, they will not, even elephant also, elephant until unless you don't cross his सिलीगुड़ी में तो कितना हमने we experience that, उनके उनके रास्ते में नहीं आना, don't cross their path and they are happy, they go, they are very very nice creatures, the जानवर मेरे को एनकाउंटर एक जबरदस्त हुआ भालू के साथ, Oh, when we were posted in कुपड़ा, ऊपर एलसी पे थे हम लोग। तो आई वॉज कंपनी कमांडर इन वन ऑफ माई, आई तब तक मैं सीनियर कंपनी कमांडर हो गया था, तो एंड आई वॉज इन द
बिल्कुल फ्रंट एलसी के साथ लगकर मेरी पोस्ट थी। तो वहां पर क्या हुआ था, हम लोग एम्बुश में बैठे थे, एंड आज सामने पाकिस्तान था और इस तरफ हम थे, एम्बुश में बैठे थे। इट सो हैपेंड एम्बुश में बैठे तो हमको वी कुड सी समवन ना रेजिंग हिज हेड, सिलट में, Yeah. आई वी कुड सी ना समवन रेजिंग देयर हेड, समवन रेजिंग हिज हेड। तो ऐसा देखा एंड वी फायर्ड एट दैट, क्योंकि वहां हमने उस तरफ फायर किया, करके आवाज आई एंड फेल डाउन। मैंने बोला यार ये तो आदमी की आवाज नहीं है, समथिंग एल्स, बट इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू गो एंड चेक दैट टाइम। हमने बोला यार जो भी है देखेंगे अब कल सवेरे, क्योंकि अगर वहां से अगर कोई आ रहा है तो इट हैज टू बी मिलिटेंट ओनली और टेररिस्ट ओनली और इन्फिल्ट्रेटर ओनली। तो गोली फायर करना देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट आवाज अजीब सी आवाज आई, तो इसलिए थोड़ा वो मतलब अगले दिन सवेरे जाके देखा तो इट वाज अ भालू, और बैग भालू 6-6.5 फुट का भालू था, ह्यूज भालू। हाँ, तो वो जंगल से आ रहा था, तो हमने फायर कर दिया। तो Just accident. दैट्स एन एक्सीडेंट,